ضلع بڈگام کے ماچھوا علاقے میں آج صبح ہوئے انکاؤنٹر میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا۔ مہلوک ملیٹنٹ کی شناخت نہیں کی گئی ہے، وہ حال ہی میں ملیٹنٹ صفوں میں شامل ہوا تھا۔ اس کے قبضے سے ایک AK-47 رائفل اور ایک پستول برآمد ہوئی ہے۔ پولیس، فوج اور CRPF کی مشترکہ ٹیم نے ماچھوا کا محاصرہ کر کے تلاشی آپریشن شروع کیا تھا۔ جب فورسز کی ایک مشتبہ مقام کو گھیر لیا تو چھپے ہوئے ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کر دی، جس کے بعد باضابطہ طور پر انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔ ادھر کشمیر زون کے IGP نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ماچھوا بڈگام آپریشن کے دوران فرار ہونے والے دوسرے ملیٹنٹ کو کھیریو میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق خصوصی اطلاع ملنے پر گرفتاری کی گئی۔ گرفتار ملیٹنٹ کے قبضے سے ایک پستول اور ایک گرینیڈ برآمد ہوا۔ IGP کشمیر نے بتایا کہ فرار ملیٹنٹ کے ساتھ ٹرک ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ماچھوا سری نگر کے نواح میں باغ مہتاب کے نزدیک واقع ہے۔ انفارمیشن ملا تھا کہ ماچھوا ولیج میں 2 ٹیررسٹ چھپے ہوئے ہیں، تو پولیس، آرمی، CRPF مل کے کورڈن ڈالا۔ کورڈن ڈالتے ہی فائرنگ آیا، بعد میں اپیل کیا گیا سرنڈر کرنے کے لیے، تو ملٹن سرنڈر نہیں کیا، اور دوران انکاؤنٹر ایک ٹیررسٹ مارے گئے جو گوڑی پورہ اونتی پور کا ہے، LAT سے وابستہ رکھتا ہے، اور اس کا نام ثاقب ڈار ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس سے کچھ ڈائری ملا۔ ڈائری کو جو ہم لوگ پڑھیں تو پتہ چلا کہ اس میں ایک دوسرا ملیٹنٹ ہے، کہاں چھپا اس میں لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں پر ریڈ مارے تو وہاں سے پتہ چلا کہ ایک ٹرک میں وہاں سے بھاگا ہے۔ تو بعد میں پولیس، آرمی گئی، اس ملیٹنٹ کو بھی جو شبیر نجار ہے LAT کا، اس کو پکڑ لیا۔ اس کے پاس ایک پسٹل ملا ہے، ایک گرینیڈ ملا ہے، اور ڈرائیور کو ہم لوگ ڈیٹین کر لیے۔ ضلع راجوری کے تھانہ منڈی کے پنگھائی گاؤں میں آج پھر انکاؤنٹر ہوا۔ دراصل سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ اس علاقے میں مزید 2 ملیٹنٹ ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، جس کے بعد حفاظتی دستوں نے علاقے میں سرچ آپریشن چلایا۔ فورسز کے مطابق اس دوران ملیٹنٹوں نے فائرنگ کر دی تھی، جس کے بعد گولیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا اور باضابطہ انکاؤنٹر کا سلسلہ شروع ہوا۔ آخری اطلاعات ملنے تک علاقے میں آپریشن جاری تھا اور رک رک کر فائرنگ ہو رہی تھی۔ قصبہ بانیال کے نزدیک 4 لین چارہ تعمیراتی کمپنی کے ورکرز کیمپ میں ایک پراسرار دھماکہ ہوا۔ جمعے کی رات 11 بجے یہ واقعہ رونما ہوا۔ ایک پراسرار دھماکے کی وجہ سے MG تعمیراتی کمپنی کا ایک ورکر اور اس سے متصل مدرسہ دارالعلوم نعمانیہ کا ایک طالب علم زخمی ہو گیا، اور دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ یہ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ اس کی آواز نہ صرف دور دور تک سنائی دی، بلکہ دارالعلوم نعمانیہ اور کئی نزدیکی رہائشی مکانوں میں چھوٹی دراڑیں بھی پڑ گئی ہیں اور مکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ MG کمپنی کو بانہال قصبے کے باہر سے 4 لین چارہ پر مشتمل بانہال بائی پاس تعمیر کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ جمعے کی رات پیش آئے اس واقعے کے فوراً بعد پولیس، فوج اور انتظامیہ کے افسران جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ اس دوران SSP رامبن رات کو ہی بانہال پہنچ گئے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر رامبن مسرت الاسلام نے آج صبح علاقے کا دورہ کیا اور پولیس اور فوجی حکام سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دونوں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں زخمی تعمیراتی کمپنی ورکر گوپال شرما ساکنہ ادھمپور اور محمد عاقب ساکنہ منگت بانہال کو اسپتال منتقل کیا گیا اور دونوں کی حالت بہتر ہے۔ پولیس نے کیس درج کر کے مختلف زاویوں سے معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ادھر گئے روم میں کھانا کھا کے سونے گئے۔ اس کے بعد پہلے پتھر کی آواز آیا ہے، بٹے مارا کسی نے۔ کہاں پہ؟ ادھر نیچے کیمپ میں ہمارے، اور ہم جب ہم نے سوچا کہ ایسے آواز آیا ہوگا ہوا کے ساتھ، اور 5 منٹ میں کہ پتہ تب چلا کہ 4 جو ہمارے کو کیمپ کا مکان تھا سارا بہت سارا نیچے گر گیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ ایک بندے کو لگی ہے، اس میں بلاسٹ ہوا۔ ہاں، پتھر کی آواز آئی ہے، بعد میں بلاسٹ کیا ہے کسی نے، کیمپ پورا ختم کر دیا۔ جموں کشمیر کے LG منوج سنہا نے انتظامیہ اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ پولیتھین فری کشمیر کے لیے کام کریں۔ LG نے آج پولیتھین فری کشمیر کے لیے تاریخی گھنٹہ گھر لال چوک سے رن کو جھنڈی دکھائی۔ طلباء کی ایک بڑی تعداد اور کچھ سیاحوں نے بھی دوڑ میں حصہ لیا۔ اس دوڑ کا اہتمام SMC سری نگر نے کیا۔ بعد ازاں LG نے آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر سائیکلوتھون کو جھنڈی دکھائی۔ PDP کے 4 سابق لیڈر آج پیپلز کانفرنس میں شامل ہو گئے۔
आज श्रीनगर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामने वालों में 2 अरकान पार्लियामान भी शामिल रहे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने तमाम लीडरों का पार्टी में खैर मकदम किया। साबिक अरकान पार्लियामेंट नज़ीर लावे और फयाज अहमद मीर ने साबिक MLC मुर्तज़ा खान सफीना बेग के साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सफीना बेग साबिक MP मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की शरीक हयात हैं। चर्च लेन श्रीनगर में वाक़ई पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक डिप्टी मेयर शेख इमरान ने इन तमाम लीडरों के हमरा पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाने का ऐलान किया। इस मौके पर इन लीडरों ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की वफात के बाद कुछ लोगों ने PDP को हाईजैक कर लिया है। जनूबी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में वो PDP को धूल चाटने पर मजबूर कर देंगे। सबके साथ ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। सफीना जी के साथ तो हमारे घर के ताल्लुकात हैं बिल्कुल। मुर्तज़ा साहब दोस्त हैं हमारे, लावे साहब हैं। फयाज तो छोटा भाई है, इसको पिछले शायद 15 साल से मैं बोल रहा था, तो शायद आज इसने सोचा चलो बड़े भाई के घर आ ही जाऊं। लेकिन बहुत मुद्दत से इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जिस तरीके से इसने वहाँ स्ट्रगल की, और फिर हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं इमरान साहब, मेरे जेल के साथी भी हैं, जेल में भी वक्त इकट्ठे गुजारा, उससे पहले भी गुजारा। तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है और जिस तरीके से नामवर शख्सियात जिनका एक अच्छा इन्फ्लुएंस है लोगों में, वो आ रहे हैं। जो चैलेंजेस हैं जम्मू कश्मीर के सामने, जो पिछले 2 साल में जो हुआ, उसके बाद जो इनॉर्मस चैलेंजेस हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस कलेक्टिवली एक ऐसी टीम बन के सामने आ रही है जो इंशाअल्लाह लोगों की उम्मीदें जो हमसे हैं उन पर उतर आएगी और इन चैलेंजेस का सामना करेगी। आपने ये कहा कि PDP ने हमें यहाँ लाया और हमने क्यों छोड़ा। सवाल अच्छा है, लेकिन उल्टा पूछा आपने। असल में PDP को यहाँ लाने वाले हम लोग, हमने अपना खून जिगर PDP को दिया था, और जो स्लोगन लेके हम PDP बनाने वालों में से बुनियादी लोगों में से थे, हमारा स्लोगन ये था कि जम्मू कश्मीर में सियासत के बड़े बड़े जो पेड़ थे उनमें घुन और बिच्छू लग गए। लेकिन वक्त ने बाद में ये साबित कर दिया कि जो स्लोगन लेके हम चले थे उस पार्टी को भी बड़े बड़े घुन और बिच्छू लग गए। इस वजह से हमने अपना रास्ता अलग कर दिया। मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अगर मैं ऑपोजिशन में भी रहूँ तभी मैंने पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए वो मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं राइट पर्सन नहीं थी ऑल पार्टी मीटिंग के हवाले से बात करने के, लेकिन जिस वक्त एक प्रोपोगंडा सा चला, तो एक फेक प्रोपोगंडा चला बेग साहब के हवाले से, तो उस ज़िम्मन में मैंने कुछ बात की थी और मैं अभी भी उस पर स्टैंड हूँ। आपको पता चलेगा आने वाले कल में कि साउथ कश्मीर में PDP का क्या हाल होगा। मैं फाइटर हूँ, मैं ऐसे नहीं, मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, मेरा खानदान जानता है पॉलिटिक्स। हम पहली नंबर फर्स्ट नंबर जैसे शेख अब्दुल्ला साहब थे, बेग साहब थे, थर्ड नंबर हमारा है। लिहाजा उन लोगों को बताना चाहिए जो मुर्दे लोग हैं, जो सड़े हुए लोग थे, जिनको मिनिस्टर बनाया आपने। अब कल बता देंगे लोगों को, और आने वाले कल में इनको फेस करना है। मेरे नज़ीर लावे को कल जब फेस करेंगे आने वाले कल में, फिर पता चलेगा आपको साउथ कश्मीर में क्या होने वाला है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का कहना है कि वो स्कूलों के नाम तब्दील करने के आइडिया से मुत्तफिक नहीं है। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि जमहूरियत में कोई भी चीज़ लोगों पर ज़बरदस्ती थोपी नहीं जा सकती। CID क्लियरेंस और पत्थरबाजों को नौकरियां देने से इनकार के सवाल पर सज्जाद लोन ने कहा कि माजी में भी ऐसे मामलात में NOC मांगे जाते रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है सरकार क्या कर रही है, लेकिन NOCs तो पहले भी थी, राइट। अगर कोई नया किया है, राइट, वी स्ट्रांगली कंडेम इट। हमने बयान भी दिया है इस पर। एक सेशन जज सिलेक्ट होकर अभी तक NOC की वजह से नहीं अपॉइंट हो रहा, पिछले 6 साल से। हाँ, पहले भी था, राइट। अब मुझे नहीं पता नया क्या है, नया इसमें क्या है, बट जो हमारी पार्टी का इसमें वो तो क्लियर आया है। वी हैव मेड अ स्टेटमेंट अबाउट इट, ओपनली सेइंग दैट नो, विल नॉट। आई डोंट नो व्हिच स्कूल्स हैव बीन रीनेम्ड और व्हिच हैव नॉट बीन रीनेम्ड, बट नो, हम किसी रीनेमिंग के इसमें हक में नहीं। वी डोंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी बिलीव ऑन इन एक्शन ऑन ग्राउंड। ये रीनेमिंग, इसे ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, वी डोंट सब्सक्राइब। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में तारीख रकम की है।
नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सोने का तमगा जीतकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान का ये पहला गोल्ड मेडल है। 13 साल बाद ओलंपिक्स में हिंदुस्तान को सोने का तमगा हासिल हुआ। एथलीट्स में हिंदुस्तान का ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नीरज चोपड़ा की शानदार कामयाबी पर उनको मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा की तारीखी कामयाबी पर स्टार खिलाड़ी से बात की और जीत की शानदार मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र के लम्हात हैं। पीएम ने कहा कि नीरज चोपड़ा की इस हुसूलियाबी को मुल्क हमेशा याद रखेगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने नीरज चोपड़ा की जीत पर कहा कि पूरे मुल्क को इस सुनहरे पल का इंतजार था। हरियाणा हुकूमत ने नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक आज पूरी वादी में मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। मुक़द्दस आसार की एक झलक देखने के लिए पूरे कश्मीर से आए अकीदतमंद श्रीनगर की हजरत बल दरगाह पर जमा हुए। दिन भर पंचवक्त नमाजों के दौरान मुक़द्दस आसार का दीदार कराया गया। यहाँ कोविड वबा के खात्मे और वादी में अमन की बहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि आज का दिन 4 यार के उर्स के तौर पर मनाया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 करीबी साथियों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बतौर अक़ीदत ये रसूम अंजाम दी जाती है। यहाँ आए अक़ीदतमंदों ने कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल किया। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने वेचरनाग मंदिर में तमाम सहूलियात फराहम करने और तजावुज़ात हटाने का हुक्म दिया। उन्होंने आज नौशेरा श्रीनगर में वाक़ उस मंदिर का मुआयना किया। इस मौके पर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान जुनैद मत्तू के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर मेयर ने मंदिर इंतज़ामिया अरकान की शिकायत सुनी और जल्द से जल्द तमाम मसाइल का हल निकालने की मुताल्लिक़ीन को ताकीद की। जुनैद मत्तू ने चीफ सैनिटेशन अफसर SMC को हिदायत दी कि वो इस मंदिर के तालाब और आसपास की सफाई के लिए इक़दाम करें। चीफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर SMC से भी कहा गया कि वो इलाके में गैर कानूनी तजावुज़ात को हटा दें। मेयर ने मंदिर के अपग्रेडेशन के लिए म्यूनसिपल वर्क्स विंग को हिदायत दी। जुनैद अजीम मत्तू ने इस मौके पर जडेबल और मुल्हिका इलाकों में भी गए। यहाँ पर उन्होंने मुहर्रम के इंतजामात का जायज़ा लिया। मेयर ने यहाँ बिजली, पीने के पानी और सफाई के दरकार बंदोबस्त करने की तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के लीडर मोहम्मद उमर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बादशाही बाग श्रीनगर के मकीन उमर ने दावा किया कि 1 अगस्त को उन पर मिलिटेंटों ने हमला किया था। मोहम्मद उमर ने अपने मोहल्ले की कमेटी की मौजूदगी में अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सियासी या समाजी ग्रुपों से इजहार लाताल्लुक़ी किया। उन्होंने बताया कि अब से वो किसी सियासी या समाजी गिरोह से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ अपने पूरे मोहल्ला कमेटी की तरफ से, अगर मेरे से कभी भी पॉलिटिकली या सोशली किसी से नाराज़गी होगी या मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँची होगी, मैं उसको माफ़ी मांगना चाहता हूँ और पूरे अवाम के सामने उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और जो पॉलिटिकली मैं जिस पार्टी के साथ था उससे मैं खैराबाद करना चाहता हूँ। आज के बाद मुझे हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई भी वाबस्ता नहीं। मुझे लगा कि मेरे कामों की वजह से शायद किसी को मेरे कामों से तकलीफ पहुंची है, उस वजह से मैं रिज़ाइन करना चाहता हूं। बडगाम में DDC चेयरपर्सन नज़ीर अहमद खान ने कहा कि वोटों की गिनती के दिन कुछ भी गलत नहीं हुआ था। गिनती के बाद ही उन्हें ज़िला बडगाम का चेयरपर्सन नामजद किया गया था। ताहम इस मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अदालत से रुजू हो चुकी है। नज़ीर अहमद खान ने NC की दरख्वास्त पर आने वाले अदालती फैसले का इंतजार करने पर जोर दिया। नज़ीर अहमद खान ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर दी है। नज़ीर खान के मुताबिक हाल ही में होने वाले DDC इंतखाबात में कई अजला में NC को बहुत सी बड़ी नशिस्तों से हाथ धोना पड़ा। नज़ीर अहमद खान का इल्ज़ाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ उन्हें DDC चेयरपर्सन के ओहदे से हटाने में दिलचस्पी रखती है। कोर्ट को जो मतलब हमारे कंट्री में जो सबसे बड़ा मतलब मयार वाला जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है अदालत आलिया, यही खुद चले गए, यही खुद उसके मुकाबले में नॉन ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। शर्म तो इनको आनी चाहिए। अगर आप कोर्ट में चले गए, इंतज़ार करें, कोर्ट क्या फैसला देते हैं हम सारा आंखों पर कबूल करेंगे।
लार में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन जरीफा राशिद और डिप्टी सरपंच कुरहामा के अलावा सीनियर सियासी कारकुन अब्दुल रशीद और दीगर पार्टियों के कई कारकुनान नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। जिला गांधरबल के लार में ये जलसा मुनक्किद किया गया था। इस तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर और गांधरबल के साबिक एमएलए शेख अशफाक जब्बार भी शरीक थे। गांधरबल की डीडीसी चेयरपर्सन नुजहत और पार्टी के दीगर ओहदेदारों के साथ साथ इलाके के सरपंच भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। शेख अशफाक जब्बार ने पार्टी में शामिल होने वाले नए कारकुनों का खैर मकदम किया और लोगों की फलाह बहबूद के लिए अंत काम करने की उन्हें तरगीब दी। पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों ने आवाम की मुश्किलात के इजाले के लिए काम करने और अपने अपने इलाकों में पार्टी को मजबूत बनाने का अहद किया। आइंदा के लिए हम यहाँ से ब्लॉक सतह पर और हल्का सतह पर हर जगह में ये प्रोग्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखूँगा कि ये हर लिहाज से हल्कों में ब्लॉक सतह पर डिस्ट्रिक्ट सतह पर ये प्रोग्राम मुनक्किद होंगे और ये इसके ज्वाइन करने से लार ब्लॉक में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इसका जो असर है वो पूरे 24 साल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और शोपिया के साबिक रुकन असम्बली शेख मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि जब तक अवामी हुकूमत नहीं बनती लोगों की तकलीफें कम नहीं होंगी। उनके मुताबिक ब्यूरोक्रेसी से लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। शेख मोहम्मद रफ़ी हिरपुरा शोपिया में एक तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों के साथ बात कर रहे थे। शेख मोहम्मद रफ़ी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आइंदा इंतखाबात के लिए अपना मैदान साफ कर रहे हैं और आवाम अपनी पसंदीदा हुकूमत का इंतखाब करेंगे। मसाइल और मुश्किलात हैं वो ठीक है, वो तो है, इनको इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इसमें जहाँ जो रूल चल रहा है वो ब्यूरोक्रेटों का रूल चल रहा है। किसी को कोई सुनवाई नहीं है। कौन एक आम आदमी किसके पास जाएगा? अगर एक आम आदमी किसी के पास उधर से दरवाज़ा ही नहीं खुलता है, तो लिहाजा यहाँ मुश्किलात है लोगों को। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा के खिलाफ आज वकला दूसरे रोज़ भी एहतजाज पर रहे। इस दौरान हंदवाड़ा के साथ साथ कुपवाड़ा में भी वकला बरादरी ने अपना एहतजाज दर्ज करके मुतालबा किया कि मुतल्लिक़ अफसर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। हंदवाड़ा में वकला ने मुतल्लिक़ अफसर पर कई तरह के इल्ज़ाम आयद किए और उनके फौरी तबादले का मुतालबा किया जा रहा है। बार एसोसिएशन के सदर का कहना है कि वो तब तक धरने पर बैठेंगे जब तक उनका तबादला नहीं होगा। इस दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा नज़ीर अहमद ने न्यूज़ 18 को बताया कि कई एक वकला ने उनके साथ बदतमीज़ी की है और उन पर हमला किया है, जिसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए इन वकला के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। ऑफिस बंद करके हमें ना अंदर आने देता है और ना ही आम लोगों को। हमारे पास 2019 से लेकर आज तक बहुत सारी डीडें पड़ी है। जो लोग 20-25 बार यहाँ से वापस होके जाते हैं। इसने हमारे प्रेसिडेंट साहब को और एक फेलो कलीग थे उनके साथ, उनको ऑफिस में कन्फाइन किया, उनको मैन हैंडल किया, थ्रेट किया, अब्यूज किया एंड थ्रेटन्ड देम ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो उस हवाले से हमने CJM कोर्ट में उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की। क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ जज एज वेल एज जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। तो इस हवाले से हमने डिसाइड किया वी विल कंटिन्यू द प्रोटेस्ट टिल डेथ। आई एम ऑन टिल डेथ। और मैं आज 4 बजे वसीयत नामा देगा, मुझे दफन कराएंगे अगेंस्ट करप्शन, हमेशा याद रहेगा। मुझे इस कम्युनिटी के साथ कोई ज़ाती कोई मामला नहीं है, लेकिन सिवाय 1-2 बंदे इनके आए जो मेरे ऑफिस में पिछले दिन आए। उन्होंने वो घुस गए मेरे ऑफिस में और उन्हें वहाँ वो सीन क्रिएट किया, उन्होंने वहाँ गालियाँ दे दी। तो मैंने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है। लेट द पुलिस डिसाइड। हंदवाड़ा में पिछले 2 रोज से वकला और सिविल इंतजामिया के दरमियान टकराव का सिलसिला जारी है और आज दूसरे रोज भी वकला ने यहाँ पर ADC ऑफिस के खिलाफ एहतजाज किया। वो कह रहे हैं कि ADC के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ ADC ने वकला के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान। कश्मीर में मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद होता रहता है, लेकिन श्रीनगर में पहली बार मुनफरद फूड चैलेंजेस का एहतमाम किया जा रहा है। 30 इंच बड़ा पिज़्ज़ा खाएं और 20,000 रुपये नकद इनाम पाएं। यूरोपीय फूड ब्लॉगिंग चैलेंजेस से मुतासर ये नया तस्वर श्रीनगर शहर में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। जदीद दौर में बदलते हुए तर्ज ज़िंदगी के साथ वादी में फास्ट फूड बेहद मकबूल हो रहा है।
श्रीनगर के रेस्टोरेंट में पिज्जा, हैमबर्गर, सैंडविचेस और हॉट डॉग तेजी से रिवायती खानों की जगह ले रहे हैं। मज़कूरा तमाम चीजें खाने पर जेब जरूर हल्की हो जाती है, लेकिन खाने का लुत्फ लेने के साथ उसके एवज अगर कोई नकद इनाम भी ले सके तो उस चैलेंज को कबूल करने में शायद कोई पीछे नहीं हटेगा। शहर श्रीनगर के नगीन इलाके में एक रेस्टोरेंट के मालिक ने एक नया फूड चैलेंज शुरू किया है। अगर आप इस रेस्टोरेंट का 30 इंच लंबा सिसिलियन पिज्जा आधे घंटे के अंदर खा लें तो आपको 20,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। श्रीनगर में अब तक 4 लोगों ने इस चैलेंज को कबूल जरूर किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इस तरह के फूड चैलेंज का तस्वुर कश्मीर में जरूर नया है, लेकिन यूरोपीय ममालिक में ये कंसेप्ट काफी कामयाब रहा है। माहिर शेफ के हाथों बनने वाले इस पिज्जा पर पनीर, प्याज, चिकन और हरी मिर्च की 6 भरपूर टॉपिंग्स होती हैं। लेकिन बहुत बंदे क्लोज गए इस चैलेंज के, लेकिन अभी तक कंप्लीट कोई नहीं कर पाया। अब इसमें ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट हमने ये रखा कि अगर ये कोई करता है, ये चैलेंज कोई कंप्लीट करता है, तो हम उसको 20,000 कैश प्राइज देंगे, ताकि एक मोटिवेशन, ये बस एक मोटिवेशन के लिए। अब हमारा आगे ये है कि अब ये सक्सेस हो गया है, अब हम आगे देख रहे हैं कि अब और चैलेंज आगे की तरफ लाए और डिफरेंट आइटम्स पे डिफरेंट चैलेंज लाए। हमारा स्टाफ जो है वो इसको अच्छे से बनाता है और बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से रिस्पांस भी मिला है, जितने खाया है, बहुत इसकी तारीफ भी की गई है, बहुत अच्छा होता है पिज्जा। आम पिज्जा गोल शक्ल के बनाए जाते हैं, लेकिन खास चैलेंज के लिए ये पिज्जा स्क्वायर शेप का बनाया गया है। श्रीनगर में महज यही एक फूड चैलेंज नहीं हो रहा, बल्कि एक और रेस्टोरेंट ने नॉनवेज थाली खाने का चैलेंज भी मुतारिफ कराया। इस थाली में तंदूरी चिकन, मटन बिरयानी, कीमा और चिकन टिक्का जैसी डिशें शामिल हैं। इस चैलेंज को पूरा करने वाले को 10,000 रुपए इनाम दिया जा सकता है। कश्मीर के फूडीज में इस तरह के चैलेंज काफी मकबूल हो रहे हैं और खास बात कि ऐसे चैलेंजेस के वीडियो भी मुख्तलिफ फूड ब्लॉगिंग साइट्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं और उनको पसंद भी बेहद किया जा रहा है। लेकिन इजहर भाई ने, इटालियन शॉप ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लिया है कि वो एक 30 सिलिकॉन पिज़्ज़ा खाए और 30 मिनट्स में फिनिश करे और अपना प्राइज़ हासिल करे। काफ़ी बढ़िया कंसेप्ट है ये इजहर भाई और इटालियन द पिज़्ज़ा शॉप का। अगर आप भी मुफ्त में पिज्जा खाने के मूड में हैं तो बस आप ये करें कि अपना पेट खाली रखें, अपने दांत भी घिस कर थोड़े नोकदार बना लें और फिर इस लजीज आजमाइश का सामना करें। क्या पता आपको इनाम की ये रकम मिल ही जाए। हाँ, दूसरी सूरत में आप अपना पेट खराब कर सकते हैं, बदहजमी के बहरान से दोचार हो सकते हैं, लेकिन ये सब इस पर मुनहसर है कि आपका मैदा कितना मजबूत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। हाईगाम वेटलैंड्स का शुमार बारामूला के बहुत ही मशहूर वेटलैंड्स में होता है। ये मुहाजिर परिंदों की बड़ी आमाजगाह है। मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ, नबातात और जानदारों का ये मस्कन हुकूमत की तरफ से अदम तवज्जुही का शिकार है। सरकारी इंतजामिया की गफलत की वजह से वेटलैंड की एक बड़े हिस्से पर कब्जे हो चुके हैं और माहौलियाती एतबार से काफ़ी अहम इकोसिस्टम खतरात का शिकार है। हाईगाम वेटलैंड्स 1400 हेक्टेयर रकबे पर फैला हुआ है। पूरा इलाका गुंजान आबादियों से घिरा हुआ है। इलाके के मकीन सरकंडे के कारोबार और माहीगीरी पर इन्हिसार करते हैं। पूरे इलाके में मुकामी और मुहाजिर परिंदे जा बजा नजर आ जाएंगे। हर किस्म की मछली इस इलाके में दस्तयाब है। हाईगाम के वेटलैंड के किनारों पर मखसूस किस्म के पौधे लगाए गए हैं। मौसम सरमा में हाईगाम के ये वेटलैंड मुहाजिर बत्तखों की आमाजगाह बन जाते हैं। रंग बिरंगे खूबसूरत और माहौलियाती निज़ाम का अहम जुज़ समझे जाने वाले जानदार इस वेटलैंड का रुख करते हैं। काफ़ी अहमियत के हामिल रहने के बावजूद हर गुजरते साल के साथ ये वेटलैंड सुकड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ मफाद परस्त लोग इस ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। हाल ही में सिविल सोसाइटी टार्जो सोपोर ने हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें वेटलैंड के हदबंदी और बाड़ लगाने का मुतालबा किया गया था। और इसके जवाब में डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसने हिसारबंदी और तजावुज़ात को हटाने के लिए इलाके का दौरा किया। लेकिन सिविल सोसाइटी अरकान इन इक़दामात से मुतमईन नहीं है।
और इस मामले में मुदाखलत करने का लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा कर रहे हैं। बदकिस्मती से 10-20 साल से इसको इंक्रोचमेंट करते आए हैं। हमने कई बार हुकूमत जो मतलब पहले स्टेट गवर्नमेंट जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, चाहे एमएलए होता था या कोई मंत्री होता, हम कहीं मतलब हर बार जाते थे उनके पास। उनको ये बोलते थे ये एक मतलब कौमी जायदाद है, इसको नुकसान हो रहा है, मगर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर बदकिस्मती से फिर एक बार जब हाई कोर्ट ने भी इस पे डिसीजन दिया था 2003 में लगभग शायद यही, तो वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। गवर्नर साहब से मतलब रिक्वेस्ट करेंगे वो उसमें पर्सनली इसमें इंटरवेन करे ताकि ये इनको ये छुटकारा मिल जाए। हाईगाम वेटलैंड्स के ब्लॉक ऑफिसर फैयाज अहमद ने खदशा जाहिर किया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुस्तकबिल में इन वेटलैंड्स के आसार भी नहीं मिलेंगे। इन्होंने कहा कि इस वक्त सिर्फ 3 से 4 मुलाजमीन इन वेटलैंड्स की रखवाली कर रहे हैं और इनके लिए इस बड़े इलाके की निगरानी और इंतजाम करना नामुमकिन है। अब जो देख रहे हैं, जो लैंड मेरे पीछे है, लगभग 1100 कनाल है। रिसेंट इंक्रोच हुआ है और हर साल हमने FIR इनके खिलाफ दिया है। FIR के बाद 2-4 दिन ये बंद रहे फिर, लेकिन इनका मकसद जो है पैडी करना है वो तो होता है। गवर्नमेंट से अपील करता हूँ इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इकदाम किए जा रहे हैं? हाँ, किए जा रहे हैं जी, किए जा रहे हैं। कहाँ पे वो प्रोसेस है अभी? हाँ जी, चल रही है प्रोसेस। अच्छा, डिमार्केशन वगैरह हो चुकी है वहाँ पे जो अपनी इस वेटलैंड की लैंड है? चल रहा था, हम उस पर भी चल रहा था। तो कब तक ये काम खत्म होगा अगर आप बता सकते हैं? ये जॉइंट प्रोसेस है, सबका काम मुझे नहीं पता वो लोग कब तक करेंगे काम, अभी हो जाएगा 2-3 दिन तक। चलिए जी, उनके खिलाफ FIR भी हैं बहुत, जो इंक्रोचर्स हैं, तो जहाँ तक हमें पता है जी। आगे की कार्रवाई इसको करनी है जी। इसको सेव करने की काफी जरूरत है क्योंकि हजारों कनाल जमीन जो है वो इंक्रोच हुई है। पता है इनको, बिल्कुल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हायर लेवल पे कर रहे हैं। थैंक यू सर। सरकारी सतह पर हुए सर्वे के मुताबिक इन वेटलैंड्स के 2500 कनाल जमीन पर फिलहाल कब्जे हो चुके हैं। यहाँ धान की फसल लगाई जा रही है। कुछ जगहों पर बाज़ाब्ता बागात और खेत भी बना लिए गए हैं। मुल्क व बैरून मुल्क के सयाह कुदरती खूबसूरती का नज़ारा करने के लिए इस इलाके को आते रहते हैं। मुतल्लिका हुकाम अगर इस मसले पर खामोश रहे तो इन वेटलैंड्स की अहमियत घटती जाएगी और इन वेटलैंड के जरिए अपनी रोजी का इंतजाम करने वाले भी उन्हें हासिल वसाइल खो देंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। चेरुवान और दीगर मुल्हिका चारगांव में रहने वाले लोगों को अहम शाहरा और ज़िला गांदरबल में ज़िले हेडक्वार्टर से जोड़ने वाला अहम पुल मौत के फंदे में बदल गया है, जो इंसानी जानों के लिए खतरा है। इन इलाकों के लोगों का कहना है कि नाला सिंध के बहते पानी पर बने वाहिद पुल की मरम्मत 1 दहाई से ज़्यादा अरसे के बाद कभी नहीं हुई। लोग अपनी जानों को खतरे में डालकर पुल पार करते हैं। लोगों ने फौरी तौर पर मसले के हल की मांग की। ये 4 गांव है, इसमें नई सड़क है, नई गाड़ी है, नई कुछ है, नई कदल है, तो नहीं कोई सहूलियत। अगर कोई बीमार पड़ जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, उसको रात के लिए हमको ये कंधे पर उठा कर लेकर जाना है, लस्सी जलाना है। इस पुल को कम से कम 12-15 साल हुए हैं सर। ऐसे जैसे मान तो ऊपर साइड ठीक कर दिए और बीच से ऐसे ही छोड़ दिया और मुश्किलात होती है। यहाँ बच्चे जाते हैं, हम चाहते हैं इसका काम हो ताकि यहाँ से हम लोगों को मुश्किलात ना हो। मानसबल ड्रामेटिक्स सफपुरा ने ज़िला गांदरबल में मुख्तसर ड्रामों का एहतमाम किया। आलमी सतह पर मशहूर मानसबल झील के किनारे ओपन एयर थिएटर में एक शॉर्ट प्ले फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। खवातीन और बच्चों समेत लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ शरीक थी। यहाँ हाजरीन कश्मीरी लोक गीतों से महजूज हुए। यहाँ शरीक लोगों ने मुख्तसर ड्रामों में वादी के नामवर फनकारों के परफॉर्मेंस को बड़ी ही दिलचस्पी से देखा। मुमताज़ ब्रॉडकास्टर, मुसन्निफ और शायर निसार नसीम ने इस शॉर्ट प्ले फेस्टिवल का एहतमाम किया था। उन्होंने कहा कि रिवायती चाशनी से भरपूर ऐसे प्रोग्राम आज भी अपनी अहमियत रखते हैं। लोगों के पास तफरीह के दूसरे जरिए होने के बावजूद ऐसे इवेंट्स की अपनी जाज़बियत बरकरार है। लोग घरों से बाहर आए, देखिए
जो भी चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं वगैरह, वो ठीक है, तो उनका तो अपना हिसाब है, लेकिन घरों में रहते हैं। जब आप स्टेज पे आ जाते हैं और आमने सामने आर्टिस्टों को नाटक खेलते हुए या जो भी कोई परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं, तो आप ज़िंदा अपने आप को महसूस करते हैं कि सामने आपका आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है और बिल्कुल उनके सामने बैठे होते हैं। ऑडियंस जो अगर उन्हें अच्छा लगे तो सराहते हैं, अगर अच्छा नहीं लगे तो वही। लद्दाख में रॉयल एनफील्ड ने अपनी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत कचरे के बैग तकसीम किए। RTVO टूरिज्म डिपार्टमेंट महकमे देही तरक्की के अलावा लद्दाख टैक्सी यूनियन को कूड़ा जमा करने के थैले और सफाई के काम आने वाली दीगर चीज़ें फराहम की गईं। जिम्मेदाराना तरीके से ट्रैवल और टूरिज्म को फ़रोग़ देने के मकसद से ये पहल की गई। लद्दाख में 5 अगस्त से 5 अगस्त से हमने एक क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया था, जो अब 15 अगस्त तक चलेगा। इसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम के तहत मना रहे हैं। मरकजी सरकार की वजारत टेक्सटाइल की जानिब से क्राफ्ट टूरिज्म विलेज कानिहामा मागाम में 7वें नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। यहाँ मुनक्कद तकरीब में इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन प्रकाश मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब का इफ्तिताह उद्योग भवन नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से किया गया। कानिहामा मागाम में इस मौके पर मुतल्लका महकमे के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब में माहिरीन ने कश्मीरी कारीगरी की खासियत पर रोशनी डाली। तकरीब में कानिहामा और दीगर इलाकों के कानी और पश्मीना शॉल से वाबस्ता कारीगरों ने भी शिरकत की। आज कानिहामा में 7वां हैंडलूम नेशनल डे मनाया गया। इस की वजह यह है कि रिसेंटली जो यहाँ पे क्राफ्ट टूरिज्म विलेज की डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे अलग एक पहचान मिली है कानिहामा के गाँव को। तो यहाँ के व्यूवर्स जितने भी हैं वो ज़्यादा खुश हैं। एक तो इस वजह से कि उनके काम को सराहा गया है, क्राफ्ट टूरिज्म विलेज मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेमाइजेशन हुई है, पावर सप्लाई बेहतर हुई है, व्यूवर्स को वर्कशॉप मिले हैं, रंगो रोगन किया गया है। तो हम इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ज़बरदस्त शुक्रगुजार हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरूट में आज अगस्त के महीने में भी पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ पर मुल्क के सयाह खूब सैर तफरीह कर रहे हैं। इस मौसम में जहां कश्मीर में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस गर्मी के बावजूद गुलमर्ग के अफरूट में बर्फ़ की चादर जमी हुई है। यहाँ दर्जा हरारत भी कम रहता है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाह बर्फ़ देखकर काफ़ी खुश नज़र आते हैं। सयाह गुलमर्ग गंडोला के ज़रिए से अफरूट की पहाड़ियों पर पहुँच रहे हैं। इन दिनों काफ़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुँच रहे हैं। गुलमर्ग के अफरूट पर हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने सयाहों से बातचीत की। कश्मीर की जन्नत बोलते हैं, सही बात है। मतलब बहुत ही अच्छे, सुंदर, बहुत सुंदर देखने में। गुलमर्ग आया है। गुलमर्ग रियली इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। हम यही बताएंगे सबको, आप गुलमर्ग जरूर आइएगा। मैं केरला से आ रहा हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि इधर अगस्त महीना में इधर बर्फ मिलेगा। खुश हो गया। अभी सब लोग इधर आने का है। एक बार अगस्त में सभी कभी भी आने का है। यहाँ पे जो अफरवट का मुकाम है, यहाँ पे अभी भी बर्फ मौजूद है। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह स्लेज की सवारी, जो दुनिया के सयाह आ रहे हैं, यहाँ पे मुल्क के जो सयाह आ रहे हैं, यहाँ पे स्लेज की सवारी कर रहे हैं और शौकिया तौर पे स्कीइंग भी कर रहे हैं। और इस तरह ये सयाह जो है, जब हमने उनसे बात भी की है, इनका यही कहना है कि इनके जहन में ये गुमान ही नहीं था कि यहाँ पे आज अगस्त के महीने में यहाँ बर्फ मौजूद होगा, मगर यहाँ पे जब आए हैं और ये खुशी से फूले नहीं समाये कि आज अगस्त के महीने में भी उन्होंने यहाँ पे बर्फ देखा और बर्फ पे एंजॉय किया है। और उन्होंने तमाम मुल्क के सयाहों से अपील की है कि वो यहाँ गुलमर्ग जरूर आए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। जिला पुलवामा के मुंघामा इलाके में गुज़श्ता रोज़ से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के अहाते में आपाशी नाले का पानी दाखिल होने से स्कूल तालाब की शक्ल अख्तियार कर रहा है। मुंघामा गवर्नमेंट स्कूल से गुजरने वाले छोटे से आपाशी नाले में इस मौसम के दौरान अक्सर बेशतर पानी ज़्यादा आने से स्कूल का पूरा अहाता ज़ेरे आब आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ ज़ेरे तालीम तलबा और तदरीसी अमले को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए, जब हम स्कूल आते हैं कम्युनिटी क्लास के लिए, देखिए हमारे ग्राउंड को क्या हो रहा है। हम कहते हैं कि अगर हमारा ग्राउंड साफ हो कि हम पढ़ भी सके और खेल भी सके।
ज़िला गांधरबल में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी बायस तशवीश बनी हुई है। लोगों के मुताबिक ये मसला संगीन नौइयत का इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि मुतल्लका हुक्काम इस ज़िम्न में मुनासिब इक़दामात की अपीलों को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों की टोलियाँ उधम मचाती देखी जा रही हैं। बेहामा, दुदरहामा और दीगर मुल्हक़ा इलाकों के मसरूफ़ तरीन मार्केट्स में भी आवारा कुत्ते फिरते देखे जा रहे हैं। पूरी सूरत हाल से लोगों की जानों को खतरा लाहक है। कुत्तों ने यहाँ लोगों का चलना फिरना दुश्वार कर दिया। सुबह शाम इन कुत्तों से बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन को संगीन मुश्किलें दरपेश रहती हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि नज़दीकी शहरी इलाकों से रात के औकात यहाँ ये कुत्ते मुंतकिल कर दिए जा रहे हैं। लोगों के मुताबिक कुत्तों की तादाद में पुरअसरार इजाफे की और कोई वजह नहीं हो सकती। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुक्काम से अपील की है कि लोगों की सहूलत की खातिर जल्द से जल्द इस ख़तरे से निपटा जाए। एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कुत्तों का मसला। आए दिन रोज ये शिकायतें मिलती है कि कुत्ते घूमते रहते हैं। तो कल भी एक एपिसोड यहाँ पे पाया गया, बनूर और रशीदपुरा में 2 बच्चों को जो वहाँ पे है वो काटा गया कुत्तों ने। तो अब देखिए कितनी तादाद में कुत्ते जो है फिरते रहते हैं। और सबसे बड़ा जो कुत्तों के हब बन गया वो म्यूनिसिपलिटी हमारी खुद बन गई है। आप सवेरे आकर देखेंगे तो वहाँ पे देर ही होता है कुत्तों का जमा हुआ। तो सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इन कुत्तों को रातों रात श्रीनगर से यहाँ पे लाया जाता है, गांधरबल में फिर छोड़ा जाता है। तो हम इंतजार करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, आप कहाँ सोए हो, इस चीज को रोके। ये दिन ब दिन कुत्तों की जो बढ़ती हुई तादाद है ये हमारे लिए बिल्कुल मुसीबत का बाइस बनता है। जम्मू डिवीजन के डिग्री कॉलेजों में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो चुकी है। इसे कॉलेज खोलने की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के तमाम तालीमी इदारे अगले अहकामात तक बंद रखे गए हैं। अखनूर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोर्ट में भी वैक्सीनेशन मुहिम के तहत तलबा को टीके लगाए गए। आज दूसरे दिन भी तलबा को वैक्सीन दी गई। इस दौरान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा ने कहा कि हम सरकार के साथ न्यूज़ 18 का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमें मिशन संजीवनी के तहत वैक्सीनेशन से आगाह कर रहे हैं। वैक्सीनेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग जो हैं काफ़ी टाइम से घर पे रहे हैं और हमारी क्लासेस भी जो हैं वो ऑफलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हम लोगों को अवेयर किया, और मैं न्यूज़ 18 का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मिशन संजीवनी के तहत हम सब लोगों को अवेयर किया। और मैं सभी बच्चों को यही अपील करना चाहती हूँ जिन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है वो वैक्सीनेशन लगवाएं। देखिए, डायरेक्टर जनरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से डायरेक्शन है कि जब तक बच्चों की और टीचर्स की और जो दूसरे स्टाफ है उनकी वैक्सीनेशन नहीं होती तब तक हम रीओपनिंग ऑफ कॉलेजेस का नहीं सोच सकते। तो इसके रिगार्डिंग हमने 2 दिन का ये टीकाकरण। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट नवीन कुमार चौधरी ने आज डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल चौधरी व दीगर अफसरों के हमरा इंटरनेशनल स्पाइस पार्क दूसू पामपुर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट में ज़ाफ़रान से वाबस्ता किसानों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो स्पाइस पार्क से किसानों को हर तरह की सहूलियात फराहम करें ताकि ज़ाफ़रान से वाबस्ता किसानों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लेने के लिए पिछले साल जब मशीनें लगी थी उसमें हमने कुछ तरमीम करने को कहा था। फॉर एग्जांपल अनब्रेकेबल पैकेजिंग होना चाहिए, इन चीज़ों का जायजा लेने के लिए। और मुझे खुशी है कि ये स्पाइस पार्क पूरी तरह से कंप्लीट है, हर तरह से तैयार है और जो सहूलियात चाहिए सैफरन ग्रोअर्स को इस सीजन में 100% वो मिलेगा। गुरेज में सोमो ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू की है। गुरेज इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ रूट्स के लिए नए किराए मुकर्रर करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए ड्राइवरों का कहना था कि गुरेज में तेल और गाड़ियों के पार्ट्स महंगे दामों में दस्तयाब हैं, जबकि पूरे गुरेज में सड़कों की खस्ता हालत की वजह से उनकी गाड़ियों की हालत ख़राब हो जाती है। और ये सब कुछ जानकर भी इंतजामिया ने किरायों की जो नई रेट लिस्ट जारी की है वो उन्हें काबिल कबूल नहीं है। एहतजाजी ड्राइवरों का मजीद कहना था कि यहाँ आने वाले सयाह उनकी गाड़ियों के बजाय प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और यूँ सयाहों की आमद से मकामी ड्राइवरों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। एहतजाजी ड्राइवरों ने नए किराया मुकर्रर करने के दौरान उन्हें एतमाद में लेने का मुतालबा किया। कुछ रोज़ पहले तहसीलदार गुरेज की तरफ से एक रेट लिस्ट जारी किया गया था, जो रेट लिस्ट फेसबुक पे भी आप लोगों ने देखा होगा। और सुमो स्टैंड हबा खातून सुमो स्टैंड दावर के ड्राइवर उस रेट लिस्ट से मुताफिक नहीं है, क्योंकि इस रेट के हिसाब से हमारे ड्राइवरों को नुकसान हो रहा है और उसमें चलने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी चलाने के लिए हमको मेन चीज़ें चाहिए होती है, जैसे डीजल चाहिए,
गाड़ी में काम कराना है, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, उनकी रेट्स यहाँ पे फिक्स नहीं है और वो मनमानी के हिसाब से अपनी रेट्स लेते हैं। उसी हिसाब से हमारी रेट्स फिक्स की जानी चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ पे तेल बिकता है, जिस हिसाब से यहाँ पे हमारा स्पेयर पार्ट्स बिकता है। ट्रैकिंग के लिए 10 रोज़ा सालाना फिजिकल एजुकेशन कैंप एक शानदार अख्तितामी तकरीब के साथ अख्तिताम पजीर हुआ। इस मुहिम जोई का अहतमाम डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी ने फौज के इश्तराक से किया था। मुहिम जोई का मकसद भद्रवाह में सयाहत की सरगर्मियों को बहाल करना और भद्रवाह वैली की छुपी हुई खूबसूरती को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करना था। मुहिम जोई में जम्मू यूनिवर्सिटी की 68 लड़कियों और 25 अमले ने शिरकत की। मुहिम जोई के अख्तिताम पर एक रंगारंग तकरीब का अहतमाम किया गया। ट्रैकिंग, उसके बाद यहाँ पे जितना भी इन्वॉल्वमेंट है उसको देखना और उसके बाद हमें समझना, बच्चों की बिहेवियर, बच्चों के साथ इंटरेक्ट होना, डिफरेंट स्टूडेंट सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट होना हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। रिप्रेजेंटिंग पंजाब कल्चर, एज यू कैन से आई एम ड्रेस्ड अप इन पंजाबी मुटियारा ड्रेस। भद्रवाह को एक डेस्टिनेशन जो है बनाया जा सके, उसी तर्ज पे हम जो है डिफरेंट कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे हाइकिंग है, माउंटेनरिंग है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं। आने वाले टाइम पे हम सोच रहे हैं क्रिकेट के लिए भी ग्राउंड हमारा यहाँ पर तैयार हो रहा है। By the end of the camp, now all of you who had come before and now you are going with something, gaining in full sight into this beautiful town of Bhadarwah and also learning so many memories of the camp which will stay with you for the future. इस वक्त की कुलगाम से एक अहम खबर। पंबी कुलगाम में पुलिस पार्टी पर हमला, एक पुलिस एहलकार जख्मी। जी हां, कुलगाम के पंबी में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है, एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस हमले के मकाम पर रवाना हो गए हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। कुलगाम के पंबी में पुलिस पार्टी पर यह हमला हुआ है, एक पुलिस एहलकार इसमें जख्मी हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस हमले के मकाम पर रवाना हुए हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल कृतिका ज्योत्सना ने कंगन का तफसीली दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने पुलों पर जारी कामों का मुआयना किया। JKPCC की जानब से दरिया सिंध पर तामीर किए जाने वाले अखल पुल के दौरे के दौरान मुतल्लिक़ हुक्काम ने DDC को आगाह किया कि 82 मीटर तवील कुशादा पुल 807 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। सांबा में जिला इंतजामिया ने दूर दराज के गांव गोरान में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया ताकि लोगों के मसाइल को हल किया जा सके। DC सांबा अनुराधा गुप्ता ने मौके पर ही लोगों के मसाइल को हल किया। आज जिलापुंज के सरहदी गांव नंगली में रहमतुल्लाह साईं बाग अली की ज़ियारत पर सालाना उर्स का एहतमाम किया गया। उर्स में कोरोना की वजह से कम अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर कोरोना के खात्मे की दुआ की गई। 15 अगस्त की तैयारियों को आज हतमी शक्ल देते हुए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में पुलिस, CRPF और दीगर सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। पुलवामा में वॉलीबॉल मुकाबले का एहतमाम किया गया। एडिशनल DC पुलवामा डॉक्टर अब्दुल अजीज ने वॉलीबॉल मुकाबले का इफ्तिताह किया। इस मुकाबले में जिला पुलवामा के 8 तालीमी जोन से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 90 खिलाड़ियों ने शिरकत की। तराल के अक्सर देही इलाकों में महकमे RNDD ने मनरेगा के तहत खेलकूद के लिए मैदान तामीर किए हैं। वहीं तराल के दुरतादा गुजरबस्ती इलाके में ब्रनपथरी में एक खेल का मैदान तामीर किया, जहां आज एक टूर्नामेंट का भी आगाज किया गया। गुरेज में फौज की जानिब से आज एक कार रैली का इनेकाद किया गया। रैली को राजधानी टॉप से फौज के आला अफसरान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली गुरेज और तुलैल से होते हुए द्रास तक मुनक्किद की जाएगी। बानीपुरा के शादीपुरा संभल के इलाके में वाक़ इंडोर स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट पेंचक स्लॉट चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। फाइनल मुकाबले के बाद खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के इफ्तिताह के मौके पर SDM कोर अनिल कुमार ठाकुर ने वॉलीबॉल मैच का इफ्तिताह किया। SDM कोर ने कहा कि स्पोर्ट्स इवेंट्स और शजरकारी मुहिम 14 अगस्त तक सब डिवीजनों कोर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी रहेगी। गुज़श्ता 15 दिनों से उधमपुर के गांव दरसू से गोधार गांव तक सड़क की मरम्मत में गांव के लोग खुद जुटे हुए हैं, क्योंकि जिला इंतजामिया और PMGSY के रवैये से मायूस गांव वालों ने हाल ही में सड़क की मरम्मत खुद शुरू कर दी। गांव के सैकड़ों बाशिंदे, जवान और बूढ़े सड़क की मरम्मत के लिए बाहर आए। 15 दिन पहले शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़क को नुकसान पहुंचा।
आस्ताना मोहल्ला दोनारू केलर छुपिया में खराब सड़क के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। केलर से आस्ताना मोहल्ला दोनारू इलाके तक सड़क मुकम्मल तौर पर खस्ताहाल है। म्यूनिसिपल कमेटी तराल की जानिब से स्वच्छता पखवाड़े पर प्रोग्राम के तहत कस्बे में सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें कस्बे में आने वाले सरकारी दफातर, स्कूलों और चश्मों की सफाई की गई। बेलिसा के गंदों में महकमे जंगलात ने जंगली जड़ी बूटियों की गैर कानूनी स्मगलिंग रोकने के लिए मुहिम शुरू की है, जिसके तहत कल रात 1.5 लाख रुपए की जंगली जड़ी बूटियां जब्त की गई। बानीपुरा के संभल इलाके में पुलिस ने रक्षलवत के मकाम पर एक नाके के दौरान मंशियात के कारोबार से जुड़े एक स्मगलर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए स्मगलर की शनाख्त परवेज अहमद के तौर पर की गई है। कठुआ के बनोटी में आम आदमी पार्टी की जिला यूनिट ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए आप लीडरों ने कहा कि उनकी पार्टी आम लोगों की भलाई के लिए काम करती है। अखनूर के सरहदी इलाके परगवाल में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी नामी तंजीम ने दफा 370 और 25A की मनसूखी के 2 साल मुकम्मल होने पर तिरंगा रैली निकाली। इस मौके पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के नायब सदर ने कहा कि उन्हें अब जम्मू कश्मीर की शहरियत मिली है। पंबी कुलगाम में पुलिस पार्टी पर हमला। यह खबर एक बार फिर आपको बता दें, पंबी कुलगाम में पुलिस पार्टी पर हमला, एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस हमले के मकाम पर रवाना हुई। तो कुलगाम के पंबी इलाके में पुलिस पार्टी पर हमला किया गया, जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है और सिक्योरिटी फोर्स चाहे वाक़या पर रवाना हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पर यह हमले में एक एहलकार जख्मी हुआ, जिसमें पंबी कुलगाम में यह वाक़या पेश आया है। पंबी कुलगाम में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है, जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है और सिक्योरिटी फोर्स हमले के मकाम पर रवाना हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुलगाम के पंबी में पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है और सिक्योरिटी फोर्स जाए वाक़या पर पहुंच गई है। एक पुलिस एहलकार इसमें जख्मी हुआ है। कुलगाम के पंबी में यह हमला हुआ है। पंबी कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्स पर हमला किया गया, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ है और हमले के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्स रवाना हो गई है। मज़ीद तफसीलात का अभी इंतजार है। पंबई कुलगाम के इस मकाम पे अभी मिलिटेंटों ने एक पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में कुछ पुलिस कर्मियों के जख्मी होने की इतला मौसूल हुई है। हालांकि फोर्सेस, नीम फौजी दस्ते और फौज जो हैं जाई वारदात पर पहुंच गए हैं और यहां पे मिलिटेंटों का ताक़ुब करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और हम आपको बताएं कि CRPF, फौज, पुलिस और दीगर जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पे पहुँच गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी ने इस मुहासरे को है इसको वसी कर दिया है और यहाँ पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। पंबई कुलगाम से न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए ज़हूर रिजवी। तो हमारे नुमाइंदे ने तफसील दी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि पुलिस पार्टी पर जो वहाँ से रवाना हो रही थी उस पर हमला किया गया है। पंबी कुलगाम में पुलिस पार्टी पर मिलिटेंटों ने यह हमला किया है। जो तफसीलात हमारे नुमाइंदे ने दी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले के मकाम पर रवाना।